بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ پہلے مثال دیکھ لیجیے۔ اکل الخبز طفلۃ اکل الخبز طفلۃ، بچی نے روٹی کھائی، بچی نے روٹی کھائی۔ طفلۃ بچی، الخبز روٹی، اکل کھائی۔ اکل الخبز طفلۃ، بچی نے روٹی کھائی۔ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر اکل فعل ہے، طفلۃ یہ فاعل ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور الخبز پر زبر ہے تو یہ مفعول بہ ہوگا۔ لیکن یہاں ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے، یہاں مفعول بہ فاعل سے پہلے آ گیا ہے۔ تو اوپر قاعدہ تھا کہ فعل کے فوراً بعد اگر فاعل آئے تو فعل مذکر، اور اگر فوراً بعد فعل کے مؤنث فاعل آئے تو فعل کو مؤنث لانا ہے فوراً بعد۔ لیکن یہاں دیکھیے اکلا فعل ہے اور اس کے فوراً بعد فاعل نہیں آیا، بلکہ اس کے فوراً بعد مفعول بھی آ رہا ہے، اور فاعل جو ہے وہ ایک لفظ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آ رہا ہے، تو بیچ میں گیپ ہو گیا، فصل ہو گیا۔ اس فصل والی صورت میں قاعدہ بدل جاتا ہے۔ کیا قاعدہ بدل جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل اور مؤنث فاعل یا نائب فاعل، یہ یاد رکھنا، اگر فعل اور مؤنث فاعل یا نائب فاعل کے درمیان کوئی اور لفظ آ جائے تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ دیکھیے فعل اکلا ہے اور فاعل طفلۃ ہے، اور یہ مؤنث فاعل ہے، یہ یاد رکھنا مؤنث فاعل۔ اس کے بیچ میں الخبزہ آ گیا ہے، تو یہ الخبزہ بیچ میں آنے کی وجہ سے فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل ہو گیا۔ اس فصل کی صورت میں اب فعل ہمیں، چونکہ طفلۃ مؤنث تھا تو فعل ہمیں قاعدے کے مطابق مؤنث لانا چاہیے تھا، لیکن جب بیچ میں فصل ہو گیا تو اب اس فصل کی وجہ سے آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں، اکلا بھی لا سکتے ہیں اور اکلت بھی لا سکتے ہیں۔ اکلت والی صورت میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ آگے طفلۃ فاعل مؤنث تو ہو گیا، لیکن اکلا والی صورت میں تھوڑا سی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیوں آ گیا، تو اس کے لیے قاعدہ بتا دیا کہ اکلا فعل اور مؤنث فاعل یا نائب فاعل کے درمیان میں اگر کوئی اور چیز آ جائے تو وہاں آپ کو اختیار ہے فعل کو مذکر لاؤ یا مؤنث لاؤ، تو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ کتاب میں مذکر والی صورت دی ہے کیونکہ مؤنث والی صورت میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اعتراض مذکر والی صورت میں ہے، تو یہ آپ کو بتا دیا کہ فعل اور مؤنث فاعل یا نائب فاعل کے درمیان میں اگر کوئی اور چیز آ جائے تو فعل کو آپ مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک قاعدہ، یہ ایک قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا قاعدہ جو آج پڑھنا ہے یہ تھوڑا سا اہم ہے قاعدہ، اس پر بڑی آپ کو غور و فکر سے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ قاعدہ یہ ہے، تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں قاعدہ، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا فاعل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے اس میں ظاہر، اور دوسری صورت ہے ضمیر کی، اور پھر ضمیر میں بتائی تھی دو صورتیں ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل سمجھیے آپ۔
ज़रबा राशिदुन, ज़रबा राशिदुन, यहाँ पर ज़रबा फ़ैल है, राशिदुन फ़ाइल है, और ये राशिदुन फ़ाइल जो है ये इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर, क्योंकि ये ज़मीर नहीं है और इसम है और यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, अब हम फ़ाइल लाएंगे ज़मीर को। देखिए राशिदुन ज़रबा, राशिदुन ज़रबा, अब ये राशिदुन मुब्तदा बनेगा और ज़रबा फ़ैल है, और इसके अंदर हुआ ज़मीर हम निकालेंगे, वो मौजूद लफ्ज़ों में नहीं है, वो हमने निकालनी है, तो ये इसका फ़ाइल बनेगा। और ये फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर है, छुपी हुई ज़मीर जो हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये फ़ाइल यहाँ पर एक तो ज़मीर बन रही है और मुस्ततिर है। और तीसरी सूरत, अतिलमीज़ानी ज़रबा, अतिलमीज़ानी, दो बच्चों ने मारा, तो अतिलमीज़ानी मुब्तदा है, ज़रबा फ़ैल है, और ये अलिफ जो है ये इसका फ़ाइल है ज़मीर। और यहाँ पर ज़मीर छुपी हुई नहीं है, बल्कि हम इस ज़मीर का तलफ़ुज़ कर रहे हैं, तो ये ज़मीर बारिज़ है, ज़मीर बारिज़ जो मौजूद है, और ये ज़मीर मुस्ततिर जो इसके अंदर छुपी हुई थी, सामने मौजूद नहीं थी। तो ये फ़ैल फ़ाइल। अब फ़ाइल की कितनी सूरतें आ गई? 3 सूरतें। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, फ़ाइल ज़मीर हो मगर मुस्ततिर हो, फ़ाइल ज़मीर हो मगर ज़मीर बारिज़ हो। तो फ़ाइल की 3 सूरतें आपके सामने आ गई, इसमें ज़ाहिर, ज़मीर मुस्ततिर और ज़मीर बारिज़। ये कहते हैं कायदा ऊपर जो है कि अगर फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो, ज़मीर ना हो, फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ैल हमेशा मुफ़रद ही आता है। क्या मतलब? देखिए ज़रबा अल वलदु, ज़रबा अल वलदु, फ़ाइल यहाँ पर इसमें ज़ाहिर है, नाम है किसी का, ज़मीर नहीं है, तो अल वलदु है। दूसरी मिसाल आप देखिए, ज़रबा अल वलदानी, 2 बच्चों ने मारा, और ज़रबा अल औलादु, अल औलादु। कायदा जो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर अल वलदु इसमें ज़ाहिर है, अल वलदानी इसमें ज़ाहिर है, अल औलादु इसमें ज़ाहिर है, और ये सारे फ़ाइल बन रहे हैं। यहाँ पर फ़ाइल रफ़ा होता है, फ़ाइल पर रफ़ा होता है तो पेश आ गई है, और तस्निया वाली सूरत में रफ़ा अलिफ होता है, और यहाँ इस पर ऑलरेडी पेश मौजूद है, तो ये सारे मरफू हालत में हैं। तरकीब होगी ज़रबा फ़ैल अल वलदु फ़ाइल, ज़रबा फ़ैल अल वलदानी फ़ाइल, ज़रबा फ़ैल अल औलादु फ़ाइल। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, बता रहे हैं कि फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो सब में ज़ाहिर है। फ़ैल हमेशा मुफ़रद ही आता है, फ़ैल हमेशा मुफ़रद आएगा, यानी तस्निया जमा नहीं आएगा, बल्कि वाहिद मुज़क्कर का सीगा या मुअन्नस का सीगा, दोनों मुफ़रद के सीगे आएंगे। अब देखिए ज़रबल वलदु, आप कहेंगे जी मुफ़रद नहीं तो और क्या आएगा, अल वलदु एक है तो इसके लिए मुफ़रद आ गया, तो यहाँ अल वलदानी 2 हैं, तो इसलिए जहन में ख्याल आता है कि अल वलदानी फ़ाइल 2 हैं तो फ़ैल भी 2 आने चाहिए, ज़रबा आना चाहिए ना, फ़ैल मुफ़रद ही आएगा। अल औलादु ये जमा है तो फ़ैल भी जमा आना चाहिए ना, फ़ैल जमा नहीं आएगा, फ़ैल मुफ़रद ही आएगा। अच्छा एक सूरत और भी आप याद रखें, आपके जहन में बल्कि ये सवाल आएगा कि ज़रबा में हमने उधर ज़मीर निकाली थी हुआ, तो यहाँ पर भी ज़रबा में ज़मीर निकालेंगे ना। जब फ़ाइल सामने कुछ मौजूद होगा इसमें ज़ाहिर, तो फिर ज़रबा में से कोई ज़मीर नहीं निकलेगी, फिर ज़रबा खाली फ़ैल है, फिर इसमें वो ज़मीर फ़ाइल वाइल कुछ नहीं। ज़रबा में फ़ाइल उस वक़्त निकलेगा जब ज़रबा के साथ इसमें ज़ाहिर फ़ाइल ना मौजूद हो, तब ज़रबा में से हम हुआ ज़मीर फ़ाइल निकालते हैं।
वो भी वाहिद की सूरत में। अगर तस्निया आ जाएगा तो वहाँ ज़रबा में से आप हुमा नहीं निकाल सकते। आप कहोगे जी हमने अल वलदानी के लिए ज़रबा इस्तेमाल किया था, तो अब हम यहाँ हुमा भी निकाल दें, हुमा नहीं निकलेगा। उसके लिए ज़रबा तस्निया की ज़मीर लानी पड़ेगी, वो मैं आगे चल के बताऊँगा मुताबिक में। तो इसमें ज़ाहिर अगर फ़ाइल है तो फ़ैल हमेशा मुफरद ही आएगा, यानी ज़रबा ज़रबा ज़रबा। इसके बदले इसके साथ में मोनस का भी है, ज़रबत अल बिंतु, ज़रबत अल बिंतु, ज़रबत अल बिंतानी और ज़रबत अल बनात। देखिए मोनस और मुज़क्कर दोनों को बता दें। अल बिंतु वाहिद है, फ़ैल वाहिद है। अल बिंतानी तस्निया है, फ़ैल फिर भी वाहिद है। अल बिन बनातु जमा है, फ़ैल फिर भी मुफरद है। कायदा यही है कि जब इसमें फ़ाइल ज़ाहिर आ जाए तो फ़ैल को मुफरद ही लाएंगे। आप कहें जी हम इसके लिए ज़रा बा अगर लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर सुनिए, जब इसके साथ ज़रा बा लग जाएगा तो फिर ये ज़मीर जो है ज़रा बा की, ये फ़ाइल बनेगा। जब ये फ़ाइल बन गया तो इस अल वलदानी को आप क्या बनाओगे? इसको भी अगर फ़ाइल बनाओगे तो ये दो फ़ाइल इकट्ठे कैसे होंगे? एक ही चीज़ के लिए। जब इधर फ़ाइल आ गया तो अब इधर लगाने की क्या ज़रूरत है? जब इधर आ गया था तो इधर लगाने की क्या ज़रूरत है? इसे हम कहते हैं ज़मीर में, चूँकि हमने अल वलदानी बताना है इसलिए ज़मीर में फ़ाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ज़रा बू लगा दो तो फिर वो वाव फ़ाइल बन जाएगा, फिर ये अल औलादु फ़ाइल नहीं बनेगा। और अगर इसको और उसको दोनों को फ़ाइल बनाओ तो क्या फ़न है, ये जुमला भी सही नहीं होगा। और फ़न ही क्या है कि इसको भी फ़ाइल बनाओ उसको भी। हाँ, अगर दो अलग अलग फ़ाइल हैं तो फिर वाव के ज़रिए से अत्फ लाकर उनका ज़िक्र किया जाएगा, वो आगे इंशाल्लाह बताऊँगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही है। तो जब ज़रबा फ़ैल है, अल वलदु फ़ाइल, ज़रबा फ़ैल, अल वलदानी फ़ाइल, अगर आप ज़मीर लाओगे तो फिर फ़ाइल वो बन जाएगा। तो अब इन दोनों में से आप फ़ाइल किसको बनाओगे? फिर तनाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए फ़ैल हमेशा मुफरद ही आएगा। क्या? अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ैल हमेशा मुफरद ही आएगा। ये तो आपने समझ लिया। ज़रा बा के बदले ज़रा बा, ज़रा बू वो सीगे नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा समझिए, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फ़ैल हमेशा मुफरद ही आएगा। अब अगर अल वलदु ज़रबा, अल वलदानी ज़रबा, अल औलादु ज़रबू। देखिए यहाँ पर अल वलदु फ़ाइल नहीं बन रहा है, अल वलदु मुब्तदा है, क्योंकि जुमला इसम से शुरू हो रहा है तो मुब्तदा है। अब यहाँ ज़रबा फ़ैल है और मैंने बता चुका हूँ कि ये जुमला फ़ैलिया तभी मुब्तदा की खबर बनेगा जब कुछ बीच में रब्त होगा, और वो रब्त हमने हुआ निकालना है। क्यों हुआ निकालना है यहाँ पर? क्योंकि अल वलदु वाहिद है और मुज़क्कर है और हुआ भी वाहिद और मुज़क्कर है, तो ये इसकी तरफ जोड़ है। अब यहाँ पर फ़ाइल हुआ निकल रहा है। अब ये हुआ फ़ाइल जो है ये इसकी मुताबिकत रखता है तो वाहिद के लिए वाहिद ही आएगा। यहाँ पर अल वलदानी मुब्तदा है, मतलब अल वलदानी दो लड़के, ज़रबा दो लड़कों ने मारा। अब ज़रबा में ये अलिफ ज़मीर जो है ये फ़ाइल है और ये तस्निया का फ़ाइल है। अब यहाँ पर हम तस्निया लाएंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे अल वलदानी ज़रबा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ़ाइल अब ज़मीर बन रहा है, अब ये अल वलदानी नहीं बन रहा है। जब ज़मीर बन रहा है तो ये ज़मीर हमने लौटानी है ना इसकी तरफ मुताबिकत के लिए। तो मुताबिकत के लिए जब हम ज़मीर लौटाएंगे तो ये तस्निया है तो ये भी तस्निया है, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है। अगर इसके साथ हम ज़रबा लगाते हैं हुआ वाली ज़मीर, तो हुआ जब हम इसकी तरफ लौटाएंगे मुज़क्कर तो है लेकिन ये तस्निया है और ये वाहिद है, तो ज़मीर की मुताबिकत पीछे वाले के साथ नहीं होगी, इसलिए वहाँ हुआ नहीं निकाल सकते। हमें लाना ही है तस्निया की ज़मीर। अल औलादु ज़रबू, बच्चों ने मारा, तो अल औलादु अब मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा है, और ज़रबा फ़ैल है
واو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. اب دیکھیے واو جمع کی ہے، یعنی یہ واو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم کو، اور یہ الف ریپریزنٹ کرتا ہے ہما کو، اور ہم تثنیہ کے لیے، ہم جمع کے لیے، اور مذکر کے لیے. تو واو مذکر کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے. دیکھیے الاولاد اگر ہم ضربہ لکھتے تو اس میں ضربہ میں ہوا نکلتا، اور ہوا کو اگر ہم اس کی طرف لوٹاتے تو الاولاد مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، لیکن الاولاد جمع ہے اور یہ واحد ہے، اور واحد جمع کی طرف مطابقت میں برابری نہیں ہو سکتی. اس لیے وہاں ضروری ہے کہ برابری کرنے کے لیے ہم وہ صیغہ لائیں جو اس کے ساتھ مطابقت کر رہا ہو. تو وہ کون سا صیغہ لائے؟ ضربو. جب یہاں ہم نکلے گا تو اس ہم کو اگر ہم اس کی طرف لوٹائیں گے تو دیکھیے ہم مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، ہم جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، تو مطابقت ہو گئی. جب مطابقت ہو گئی تو اب جب ضمیر فاعل بن رہا ہوگا تو یہ بدل سکتا ہے. ضمیر جب فاعل بنے گا تو یہ اپنے فاعل کے اعتبار سے آئے گا، جیسا پیچھے اس کو ہوگا ویسا ہی آگے ہوگا. اور اگر یہ فعل پہلے ہو اور بعد میں فاعل اس میں ظاہر، ان میں سے آپ کوئی لائیں تو پھر تینوں صورتوں میں ضربہ لگے گا. ضرب الولد، ضرب الولدان، ضرب الاولاد، کیونکہ وہاں آپ نہیں نکال سکتے کہ وہاں پھر دو فاعل آپ کو نکالنے پڑیں گے. تو قاعدہ یہ ہوا، اگر آپ کو بھاری نہ ہوا ہو، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے. تو وہ والی صورت پڑھ لی. اور اگر فاعل ضمیر بن رہا ہو تو پھر ضمیر فاعل واحد بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی، جمع بھی. جس کی طرف اس کو لوٹانا ہوگا وہ واحد ہوگا تو واحد آ جائے گا، تثنیہ ہوگا تو تثنیہ آئے گا، جمع ہوگا تو جمع آئے گا. ہاں اس کے ساتھ اگر یہاں الولدو کے بدلے میں البنتو ہوگا، الولدو کے بدلے میں البنتو ہوگا، البنتو، تو پھر ضربہ نہیں آئے گا، پھر ضربت آئے گا، کیونکہ پھر مونس کا صیغہ ہیا نکالنا ہے کہ ہیا واحد بھی ہے اور مونس بھی ہے، البنتو واحد بھی ہے اور مونس بھی ہے. مطابقت ضروری ہے، اس لیے پھر وہاں پر وہ نکلے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل پیچھے ہمیشہ مفرد ہی آئے گا، اس کو آپ نے تثنیہ اور جمع نہیں لانا ہے. ہاں اگر مبتدا کی خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہو اور وہاں ضمیر نکالنی ہو تو پھر مبتدا کے مطابق جیسا مبتدا ہوگا ویسے آپ ضمیریں لا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہوا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، یا ہم آگے چل کے اور بھی جب جملہ اسمیہ فعلیہ کی ترکیب کریں گے، اجرا کریں گے تو وہاں اور سمجھائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.